اسی کی آڑ کے اندر میرے اور ہشام بھائی کے قتل کی پلاننگ کو بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ آج بھی مجھے تھریٹ کالیں دی گئیں کہ آپ نے جمعے کو نہیں پڑھانا۔ میں نے کہا احسان لئی ظہیر کا بیٹا ہوں، سینے پہ گولی کو کھا سکتا ہوں، لیکن منبر رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حیدر کرار کی شان اقدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کی ہو تو میں خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوانے کے لیے تیار ہوں۔ علماء اہل سنت کی کردار کشی کرنے والوں کو لگام دو، اگر تم نے لگام نہ دی تو پھر ہم ملک امن و امان کی ضمانت کو نہیں دے سکتے۔ میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت، ان کے تقدس اور ان کی ناموس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ملک کے در و دیوار کے اندر بڑی قوت کے ساتھ منوایا ہے۔ چنانچہ پچھلے برس جس وقت آصف رضا علوی نے حضور اقدس کے جلیل القدر صحابی حضرت صدیق اکبر کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی تھی، تو ایسے عالم کے اندر یہاں پر ملک کے طول و عرض سے آوازوں کو اٹھایا گیا۔ وہاں پر حضرت علامہ شہید کے اس مرکز اور اس منبر سے بھی پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت و حدت کے ساتھ حضرت صدیق کی شان اقدس کے اندر پوری طرح آواز کو اٹھایا گیا اور اس امر کا اظہار کیا گیا، ہم صدیق کے نوکر ہیں، فاروق کے نوکر ہیں، ذی النورین اور علی المرتضیٰ کے نوکر ہیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے تقدس کے اوپر، ان کی عزت اور ان کی ناموس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احباب دیوبند کے ساتھ ساتھ، احباب بریلی کے ساتھ ساتھ علماء اہل حدیث نے بھی اس آواز کو پوری شرح و بس کے ساتھ اور پوری شد و مت کے ساتھ اٹھایا، جن کے اندر آپ کا یہ گناہگار بھائی اور گناہگار بیٹا اور اسی طرح بھائی ہشام لئی ظہیر بھی شامل تھے۔ اس آواز حق کو اٹھانے کی وجہ سے بعض عناصر جو نفرت کے اسیر تھے، جو تعصبات کا شکار تھے اور جو اصحاب النبی کی عظمت کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان کے بارے میں دریدہ دہنی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مختلف طرح کی پلاننگ کی اور ایک انتہائی مکروہ قسم کی سازش کے تانے بانے کو تیار کرنے میں مصروف رہے۔ موقع کی طاق میں رہے کہ حضرت شہید ملت کی شہادت کے بعد ان کے گھر سے اٹھنے والی اس آواز کو بھی دبا دیا جائے اور ہمارے وجودوں کو بھی اس دھرتی سے مٹا دیا جائے، ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ہمیں لہو کے اندر تڑپا دیا جائے، زمین کو ہمارے خون سے رنگین کر دیا جائے۔ وہ نفرت و تشدد کے اسیر، سیالکوٹ سے مبینہ طور پہ بستگی رکھنے والے ایک گستاخ اہل بیت نے جس وقت سیدنا مرتضیٰ کی شان کے اندر گستاخی کا ارتکاب کیا تو جان پہ بوجھتے ہوئے اس کے نام کے آخر میں آنے والے الہی کو میرے نام کے ساتھ آنے والے الہی کے ساتھ جوڑ کر میرے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈے کا آغاز کیا گیا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر اور اس حقیقت کو دیکھ کر کہ میں تو سیدنا علی کا نوکر ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور آپ کے دوپٹے کے اوپر اپنی جان اور تن من تن کو نشاور کرنے والا ہوں، اور سیدنا حسنین کریمین کی عزت کے علم کو اٹھانے والا ہوں، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس موقف کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہو یا ناموس رسالت کا پلیٹ فارم ہو یا دفاع صحابہ کی بات ہو یا ناموس اہل بیت کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ بغیر کسی لچک کے ساتھ، بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوئے، بغیر کسی مداہنت کے ڈنکے کی چوٹ اس بات کے جھنڈے کو اٹھایا ہے، اور ہم نے یہ کام اگر کیا ہے تو پروردگار عالم کی رضا کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ ہم سیدنا مرتضیٰ کو کسی فرقے کا رہنما نہیں سمجھتے بلکہ اہل سنت کا بھی قائد اور لیڈر اور امیر المومنین سمجھتے ہیں۔ ہمارا نظریہ سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح ہے، آپ اسد اللہ الغالب ہیں، فاتح خیبر ہیں، قاتل مرحب ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رفقا میں شامل ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہیں، سیدنا حسن و حسین کے بابا ہیں، حضرات گرامی قدر۔ لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے، گستاخی کا ارتکاب کرنے والا کہیں اور ہے اور ہم اس کے
अदालत के अंदर उसको अदालत के कटहरे में खींच कर उसको सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन मजमून प्रोपेगेंडा करने वाले जिनका मकसद ये है कि इस आड़ के अंदर उस आवाज को दबा दिया जाए कि जो आवाज हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठती है और हत्म नबूवत के लिए बुलंद होती है और नामूस सहाबा के लिए सहाबा के दुश्मनों को ललकारती है, उस आवाज को तौहीन अहले बैत का जो है इल्जाम लगाकर दबा दिया जाए। मेरी तस्वीरों को पूरे मुल्क के अंदर आज़ान इलाही की तस्वीर के तौर के ऊपर पेश किया गया, मेरी तस्वीर के ऊपर हंजरों को रखा गया, मेरी तस्वीर के ऊपर चाकुओं को रखा गया, मेरी तस्वीर के ऊपर लहू के धारों को बखेरा गया, मेरी तस्वीर के ऊपर लानत के और अलकाब को लगाया गया, मुझे गालियां दी गई, मेरे बारे में हरजा सराई की गई, झूठे इल्जाम तराशी की गई, प्रोपेगेंडे के जालों को बुना गया। और हज़रात गिरामी कदर इसके साथ साथ मैंने हुक्काम बाला को इस बात का भी पैगाम पहुंचा दिया है और आपके तवस्सुत से आज मैं इस बात को भी दोहरा देना चाहता हूं। इसी की आड़ के अंदर मेरे और इशाम भाई के कत्ल की प्लानिंग को भी तैयार कर लिया गया है, जिसका मकसद ये है कि हमें शहीद कर दिया जाए। मैं इस मुल्क का शहरी हूं, अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क से नहीं भागूंगा। आज भी मुझे थ्रेट कॉलें दी गई कि आपने जुमे को नहीं पढ़ाना। मैंने कहा एहसान लई ज़हीर का बेटा हूं, सीने पे गोली को खा सकता हूं, लेकिन मिंबर रसूलुल्लाह से पीछे हटना गवारा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, मैं ISI से, मैं MI से, मैं IB से, मैं नड्डा से, मैं मुल्क के हसास इदारों से इस बात का सवाल करना चाहता हूं। जब आपको इस बात का इल्म है तो हीन करने वाला और है और हज़रत अली अल मुर्तज़ा के हानवादे की इहानत करने वाला और है, और हमने उसके फांसी के फंदे के ऊपर भी लटका दिया जाए तो हम कभी उसके बारे के अंदर कोई सिफारिश नहीं करेंगे। और मैं यहां तक ये बात कहता हूं, अगर मैंने नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सैयदना हैदर कर्रार की शान क़ुद्स के अंदर किसी किस्म की गुस्ताही की हो तो मैं खुद अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़वाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तुम मुझे शहीद करना चाहते हो, मुझे कत्ल करना चाहते हो, साफ कहो, हम तुमको गवारा नहीं करते, हम तुमको बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तुम मेरे ऊपर तौहीन सहाबा का इल्जाम नहीं लगा सकते, तुम मेरे ऊपर तौहीन अहले बैत का इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं हसास इदारों से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूं, जिसने सैयदना हैदर की शान क़ुद्स के अंदर गुस्ताही की नापाक जसारत की है, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और वो लोग जो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, वो लोग जो मेरी तस्वीरों को लगा रहे हैं, वो लोग जो मेरे बारे में तबर्रा कर रहे हैं, वो लोग जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मैं आपके तवस्सुत से मुतालबा करना चाहता हूं, उनको भी कानून के कटहरे के अंदर पहुंचा दिया जाए और उनके खिलाफ भी मजबूती के साथ मुकदमे को कायम कर दिया जाए। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप मुझे ये बात बतलाइए, हुक्काम बाला तक आप ये मुतालबा पहुंचाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, ये किस तरह की बात है? जिंदगी मैंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के साए के अंदर गुजारी है, ये किस तरह की बात है? 35 बरस से मिंबर रसूल के ऊपर मौजूद हूँ, 35 बरस से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाओं को बुलंद कर रहा हूँ और मेरे पूरे लिटरेचर के अंदर, मेरी पूरी तकारीर के अंदर कोई एक जुमला भी तौहीन सहाबा या तौहीन अहले बैत का दिखला दिया जाए, सारी जिंदगी मिंबर रसूल के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन अगर तुम समझते हो झूठे प्रोपेगेंडे के जोर पर और कातलाना हमले की धमकियों के तौर पर और मुझको शहीद करना और हिशाम इलाही ज़हीर को शहीद करने की प्लानिंग के जोर के ऊपर मेरी आवाज को हुर्मत सहाबा के लिए दबा दिया जाएगा, अल्लाह की कसम है, सिद्दीक की सदाकत का झंडा उठाता रहूंगा, फारूक की अदालत का नारा लगाता रहूंगा, ज़िन्नुरैन की सहाबत का तराना गाता रहूंगा, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाता रहूंगा, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत का फोड़ेगा लहराता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की कोई आवाज खौफ और दबाव के जरिए और जबर के जरिए हमारी आवाजों को दबा नहीं सकती। ढाई टोकरों को लेकर मेरे खिलाफ जुलूसों को निकालने वालों, मैं आज जुमातुल मुबारक के दिन तक इंतजामिया के रवैयों को देख रहा था और इंतजामिया के कानून नाफिज करने वाले
इदारों के तर्ज अमल को देख रहा था। हज़रात गिरामी कदर, हमें इस मुल्क का अल्लाह ताला के फज़ल करम से अमन व अमान अजीज है। हम इस मुल्क के अंदर फसादात को फैलाने के मुखालिफ हैं। हम इस मुल्क के अंदर इल्जाम तराशियां करने के मुखालिफ हैं। हम इस मुल्क के अंदर ब्लेम गेम को आम करने के मुखालिफ हैं। लेकिन अगर ब्लेम गेम को बंद न किया जा तो पूरे मुल्क के अंदर इज्तिमात को निकाला जाएगा, जलसों का इनेकाद किया जाएगा, रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और ऐसे आलम के अंदर इस बात को वादे कर दिया जाएगा, वो लोग जो सिद्दीक को गाली देते हैं, वो लोग जो फारूक को गाली देते हैं, वो लोग जो ज़िन्नुरैन को गालियां देते हैं, वो लोग जो मियां आयशा को गालियां देते हैं, उन लोगों के लगामों को तुमने छोड़ा हुआ है। और जो अज़मत अहले बैत की बात करते हैं और जो अज़मत सहाबा की बात करते हैं, उनको तुम शहीद करवाना चाहते हो। हज़रात गिरामी कदर, शहादत का कोई डर नहीं है। हज़रत अल्लामा को भी शहीद किया गया, अगर मुझे भी शहीद कर दिया गया तो क्या होगा? कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। हम इस बात को समझते हैं, इस मुल्क के ऊपर हमारा भी उतना ही हक है जितना किसी दूसरे का हक है। मुझे मुल्क का अमन व अमान अजीज है, मैं मुल्क के अंदर फसाद नहीं करना चाहता। अगर तुम हमारी तस्वीरों को काला कर सकते हो, क्या हम तुम्हारी तस्वीरों को काला नहीं कर सकते? क्या हम तुमको गालियां नहीं दे सकते? क्या हमें जुबान चलानी नहीं आती? क्या हमें कलम से लिखना नहीं आता? क्या हम सोशल मीडिया के सेल को तुम्हारे अलावा मुतारक नहीं कर सकते? क्या हम सड़कों के ऊपर नहीं आ सकते? क्या हम गूंगे हैं? क्या हमारे ज़मीरों पे कुफल है? क्या हम बुज़दिल हैं? अल्लाह के फज़ल करम से हम सीने पे गोलियां खाना जानते हैं, आदाए दीन की तरफ पुश्तों को करना नहीं जानते। हुक्काम बाला इन बेगैरत बेहमियत सहाबा के दुश्मन और अहले बैत इज़ाम का नाम लेकर उलमा अहले सुन्नत की किरदार कशी करने वालों को लगाम दो। अगर तुमने लगाम ना दी तो फिर हम मुल्क के अमन व अमान की जमानत को नहीं दे सकते। मुहर्रमुल हराम के महीने को एक साजिश के तहत पिछले बरस भी जो था उसके अंदर हलफशार को पैदा किया गया, इंतशार को पैदा किया गया, सिद्दीक को गाली देने वाला 5 हवाई टिकटों के साथ इस मुल्क से फरार हो गया। हज़रात गिरामी कदर, मैं अहले बैत का भी नौकर हूँ, सहाबा किराम का भी नौकर हूँ। अगर मेरे ज़मीर के अंदर कोई गिरा होती, ज़मीर के अंदर कोई उलझन होती, तो आज मैं हज़रत अल्लामा शहीद के इस मिंबर के ऊपर मौजूद न होता। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मैं वो हूँ, अल्लाह के फज़ल करम से अपनी बड़ाई की बात नहीं करता, लेकिन हकीकत की बात करता हूँ। मैं शेर हूँ जो गरजता हूँ मैदान में, और बिल्ली नहीं जो कछार में करती है म्याऊं म्याऊं। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस स्टेज से, पूर्वकार स्टेज से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर तो हीने मरद के कवानीन को हरकत दी जाए। जो लोग मुल्क के अमन व अमान को ताराश करना चाहते हैं, जो लोग मुल्क के अमन व अमान को पामाल करना चाहते हैं, जो लोग मुल्क के अंदर फिरका वराना कशीदगी को आम करना चाहते हैं, वो लोग जो मुल्क के अंदर फिरका वराना फसादात को तबाह करना चाहते हैं, हज़रात गिरामी के उनको लगाम डाली जाए। अगर लगाम ना डाली गई तो इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों का इनेकाद कर दिया जाएगा। ये जो नफरतों के असीर हैं, ये तशद्दुद के असीर हैं, इतने बड़े जालिम हैं और इतने बड़े कातिल हैं और इतने बड़े दहशतगर्द हैं कि मेरी तस्वीरों के ऊपर हंजरों को बनाने के बाद और मेरे गले के ऊपर चाकू को रखने के बाद और मेरी तस्वीर के ऊपर खून के छींटों को गिराने के बाद हज़रात गिरामी कदर इन्होंने जो एक कैंपेन चलाई, और हज़रात गिरामी कदर उनके रहनुमाओं को इस बात का इल्म था ये सरासर झूठ है, ये सरासर बकवास है, ये सरासर मुनाफिकत है, लेकिन उनके लीडर भी खामोशी के साथ उनकी पुष्ट पनाही करते रहे। कल जहानिया के अंदर एक बंदे ने रैली निकालने का ऐलान किया, कारी सैफुल्लाह आबद वहां पर पहुंचे, उसको पकड़ा गया। हज़रात गिरामी कदर, उसका ताल्लुक लोकल एक तंजीम के साथ था। हमारी खूबी को देखिए, हम अभी भी अपने कत्ल के मंसूबों को बनाने वालों का नाम तशद्दुद इसलिए नहीं करते कि मुल्क के अंदर फसादात बपा न हो, लेकिन उनकी हरदासराई को देखिए, उनकी बेगैरती को देखिए, उनकी बेहमियती को देखिए। एक तंजीम के साथ ताल्लुक है,
और आज रैली के निकात की तैयारियां की जा रही थी। कारी सैफुल्लाह साहब पहुंचे, जिस वक्त पहुंचे तो फौरन से पहले माफिया मांग के अपनी जान को छुड़वाया। आज सरगोदा के अंदर रैली और एहतजाज का ऐलान किया गया है। हम मुकाम बाला से मुतालबा करना चाहते हैं, आज़ान इलाही या जिसने भी सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और सैयदना इमाम मूसा काज़िम की शान के अंदर गुस्ताखी की है, उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमे को चलाया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और हज़रात गिरामी के नफरत के नसीरों को भी मजबूती के साथ उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। हज़रात बात ये हो रही, इतने बड़े जालिम हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर मैं फौरन से पहले इस बात का ऐलान भी कर चुका था और अहले बैत इज़ाम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, सहाबा इकराम की नौकरी का ऐलान भी कर चुका था और उनके नाम और उनके तकद्दुस और उनकी तकदीस के गीत गाने का ऐलान भी कर चुका था। लेकिन हज़रात गिरामी कदर GTV के जालिम, बेशरम, बेहया, इहलाक बाख्ता, ज़मीर फरोश और पैसों के जरिए ईमान को बेचने वाले एंकर रब्बानी ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया और उसके बाद थंबनेल को लगाया, YouTube के ऊपर इस पैगाम को चलाया, जनाब इमाम मूसा काज़िम की तौहीन की गई, इब्तिसाम इलाही ज़हीर खामोश क्यों है? तुफ है, लानत है तुम्हारी सोच के ऊपर। मैं कैमरा से मुतालबा करना चाहता हूँ, आप GTV की नशरियात को मुअत्तल करें। अगर आपने GTV की नशरियात को मुअत्तल ना किया तो हम GTV के बाहर एहतजाज करेंगे, कैमरा के दफ्तरों के सामने धरना देंगे, रब्बानी को गिरफ्तार किया जाए, जेल के अंदर पहुंचाया जाए, तफ्तीश की जाए, उसने इस बेहमियती का ऐलान क्यों किया है, उसने इसका इर्तिकाब क्यों किया है, उसने हज़रत मूसा काज़िम की निस्बत से हमारे बारे में झूठा इल्जाम क्यों लगाया है। वो इंशाअल्लाह शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुस्ताई के झूठे इल्जाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हुब्बे रसूल के गीत गाते रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़े हक़्क़ नबूवत के डंके बजाते रहेंगे, अज़मत सहाबा के नारे लगाते रहेंगे, अज़मत अहले बैत के तराने गाते रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने अल्लाह ताला के फल, अपने रब के फज़ल व करम से किताब व सुन्नत की अमलदारी की बात भी करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर के आप ये अजीम शान तमाम कामों को अंजाम देने के लिए हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।